कोई डीजे बनना चाहता है तो कौन से जॉनर में सबसे ज्यादा पैसा है? 3-4 पैक के बाद आप 7 समुंदर नहीं बजाओ तो फिर लोगों को मजा नहीं आता। तो बोलते हैं, ये वाला बजाओ, न्यू ट्रैक, यू डोंट नो न्यू ट्रैक, भाई साहब यू आर अ शिट डीजे। आप अपने आप को कैसे मार्केट करते हो, आप कैसे दिखते हो, आपकी ग्रूमिंग स्किल्स, आजकल ये सारी चीजें भी एज अ पैकेज। Hello guys, what's up? Welcome to Vartalap with Akriti. Hello everybody, thank you so much for joining in. Yes, today we are talking to a DJ and today's episode is dedicated to all the people who are interested in music and want to make a career in music. Hello everybody, what's up? Welcome to Vartalap with Akriti. Once again, this is me, Akriti Anand, and आज हम बात करने वाले हैं about music and one of the major industries where music is of prime importance is DJing. And आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, how to become a DJ in India. And joining me to discuss this topic is one of the top DJs in our country. He's one of the top Bollywood DJs in our country. Also my dear friend, because इसने मेरी 20th birthday party पे play किया था and तब से we are friends. So Sudhanshu Singh, thanks to you ma'am for this live session. This is going to be helpful. Yes, it is absolutely going to be helpful because joining me is a very experienced DJ. He's been working for a long time and I know him also since I was 20. Us time he played on my birthday, and right now over the years he has traveled almost all over the world. He's played in Russia, Tanzania, Kenya, Singapore, and Dubai, Oman, and many other places. And also Bollywood is his genre. And he also has a podcast on Spotify and so many things to talk about. So without further ado, let me take DJ Ramesh live and solve all your queries on how you can be a DJ. और अगर आपकी कोई ऐसी questions हैं जो आप पूछना चाहते हैं and you have some query on this field, we welcome you to write down your questions. और हम आपके questions लेंगे and बात करेंगे, and hopefully this is going to be an educational and enlightening session for many people who want to make their career into the DJing industry. Also हम इसके बारे में भी बात करेंगे कैसे pandemic की वजह से the industry is right now struggling and what is it that DJs can do in the future, and अभी इस time पे भी कैसे DJs अपने talent को monetize कर सकते हैं. Ravish is doing a great job in all of this and I know it first hand क्योंकि मेरी उससे बात होती रहती है और उसने मुझे बताया है कि how he is working things out. So let me take him live. We're dancing to your music, Ramesh. That's very nice. Hi, how are you? I'm good, thank you आकृति मेरे को लाइव सेशन पे बुलाने के लिए, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बिलेटेड बर्थडे टू यू। Thank you. हो गया पिछले हफ्ते, तुमने फोन किया था. और मैं इसीलिए याद दिला रहा हूँ ताकि क्योंकि मेरे को अभी तक मेरी ट्रीट नहीं मिली है, तो आई विल कीप रिमाइंडिंग यू जब तक मुझे मेरी ट्रीट नहीं मिलती। अरे लाइव सेशन के बाद चलते हैं, I'll give you a treat. ठीक है, आज ही चलते हैं। Okay. Okay, great. So रमेश, आपके बहुत सारे फैंस हैं जो यहाँ पे ज्वाइन इन हो गए हैं. Everybody who likes you, loves you and giving you so much of love over the years, they all are here. And Yeah, the prankster Rohit Gupta is here. So hello to Rohit, the prankster. Rohit Gupta has joined. So big shout out to you, bro. So yeah, Akriti, Yes. let's start this. Yeah. या सो रमेश, सबसे पहले तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरे पास आईपीएल को लेके. नाउ आईपीएल हैज स्टार्टेड अगेन एंड यू हैव बीन प्लेइंग इन आईपीएल. तुमने 3-4 साल बजाए लगातार. यू हैव प्लेड इन सो मेनी मैचेस. यू हैव मेड द एंटायर स्टेडियम रंबल, रोर, डांस एंड शिवर टू योर म्यूजिक. तो इस साल आईपीएल में आप नहीं जा पा रहे हो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट पेंडेमिक. तो हाउ इज इट फीलिंग? How does it feel? घर पे सी एज अ डीजे और एज अ कोई सा भी आर्टिस्ट हो ना, उसको घर पे बैठ के कभी भी अच्छा नहीं लगता. अभी की सिचुएशंस ऐसी हैं कि यू मस्ट हैव नोटिस कि क्राउड के बगैर मैचेस हो रहे हैं. तो अभी उतने डीजेस परफॉर्म नहीं कर पा रहे जितने हर साल आईपीएल में किया करते थे, अलग अलग वेन्यू, अलग अलग स्टेडियम पे. तो अभी भी कुछ डीजेस हैं जो गए हैं, वेरी सेलेक्टेड फ्यू ऑफ देम हैव गॉन टू दुबई टू परफॉर्म. मैं इस बार नहीं जा पाया, बट होपफुली अगली साल करेंगे. एंड आईपीएल में परफॉर्म करने में हमेशा मज़ा आता है. इट्स बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है कि आप म्यूज़िक बजाएं और 30,000-40,000 लोग उस म्यूज़िक पे डांस करें. तो वो फीलिंग तो मैं वर्ड्स में नहीं कर सकता. और बहुत चैलेंजिंग जॉब भी है. इट्स वेरी टफ. एक क्लब में प्ले करने से एंटायरली डिफरेंट होता है आईपीएल में परफॉर्म करना, बट मज़ा बहुत आता है.
डीजेइंग इज एज अ करियर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक. बहुत सारे लोग नहीं होते जो डीजे बनते हैं, और डीजे बनना भी, यू नो, पीपल डोंट हैव द राइट परसेप्शन, बिकॉज एज अ डीजे यू आर हैंडलिंग not only your music, not only your system, you're sometimes mixing on the go. इतने सारे लोग होते हैं जो आपके सामने होते हैं, सबका अलग अलग म्यूजिक टेस्ट होता है, उन सबको एक साथ एक म्यूजिक एक गाने पे बांध के रखना, सबको डांस करवाना. How difficult is this and how do you manage with all this? See, it comes with experience only. आप जब मेरे पहला इवेंट होगा तो आई डोंट थिंक कि मैंने उतनी अच्छी तरह क्राउड हैंडल किया होगा. तो आप जैसे जैसे इवेंट्स करते जाते हो वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस आता है और आप में एक एबिलिटी आ जाती है क्राउड को जज करने की. तो जब आप में वो एबिलिटी आ जाती है तो आप अब किसी भी सिटी में जाऊँ मैं, हर सिटी का क्राउड डिफरेंट होता है, एक दो गाने प्ले करके समझ में आ जाता है कि इनको क्या चाहिए. ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा सेट चेंज हो जाता है. तो इफ़ यू गो डाउन साउथ तो वहाँ पे शायद मेरे हिसाब से लोगों को इंग्लिश गाने थोड़े ज़्यादा पसंद आते हैं, बॉलीवुड थोड़े कम और पंजाबी तो बिल्कुल ही कम. लेकिन इन द नॉर्थ पीपल लव पंजाबी म्यूजिक. तो आप ये एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे अलग अलग सिटी स्टोर करके और जितने ज़्यादा आप इवेंट्स करते हो ऐसे आपको एक्सपीरियंस आता रहता है, और विद एक्सपीरियंस फिर आप में वो एबिलिटी आती है क्राउड हैंडल करने की. इट टेक्स टाइम एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. Yeah, now let's talk about the journey. There are so many people who kept asking me about DJing, क्योंकि मैंने एक पहले सेशन किया था डीजे अख्तर के साथ, but that was not about DJing, that was about a positive mindset. And I kept getting questions. So मैंने बोला कि रविश से पूछती हूँ. Ravish has first hand-on experience on so many things. So I accumulated those questions for you today, and hopefully we'll be able to solve the queries of those people who have asked it. Sure. So सबसे पहले तो DJing के बारे में, like what is DJing exactly? The perception is you play music, but इससे बहुत सारी और चीजें भी आप करते हो. So let's explain, let's go to the basic and talk about what is DJing. See, अगर आप एकदम ब्लंटली सिर्फ एज अ डीजे का मतलब पूछो तो दैट्स डिस्को जॉकी और डिस्क जॉकी, और जिसका काम है म्यूजिक प्ले करना, मिक्स करना. दैट्स द बेसिक एक्सपेक्ट. लेकिन आज की तारीख में ये है कि एक डीजे को सिर्फ म्यूजिक प्ले करना नहीं आना चाहिए, उसके साथ उसको 10 अलग अलग चीज़ें और आनी चाहिए. तो मैं ये चीज़ हमेशा जितने भी यंग डीजेज हैं उनको हमेशा बोलता हूँ. बहुत सारे डीजेज ऐसे हैं जो दे आर वेरी गुड इन मिक्सिंग, उनकी म्यूजिक स्टाइल बहुत अच्छी है, लेकिन वो बाकी चीज़ों में पीछे रह जाते हैं. अब ये बाकी चीज़ें क्या हो जाती हैं कि आप अपने आप को कैसे मार्केट करते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आपकी माइकिंग कैसी है, आप कैसे दिखते हो, आपकी ग्रूमिंग स्किल्स. आजकल ये सारी चीज़ें भी एज अ पैकेज, विच इज आई बिलीव कि ये डीजिंग से रिलेटेड नहीं थी, लेकिन अब ये हो गई प्रेजेंट सिनेरियो में कि आजकल क्राउड को भी ऐसा डीजे चाहिए जो दिखने में बहुत अच्छा हो, जो प्रेजेंटेबल हो, यू नो. क्योंकि आपका पहले इंप्रेशन आपकी फोटो से जाता है. आपने कभी किसी डीजे को सुना नहीं है तो आप उसका फ्लायर में फोटो देखते हो कि यार ही इज अ गुड लुकिंग डीजे, है ना. एंड देन यू गो अटेंड, एंड देन अटेंड करने के बाद आप म्यूजिक सुनते हो. तो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस, आपकी मीडिया मार्केटिंग, आपका PR, it's a lot of thing that a DJ has to do these days. Music obviously that's the most important thing, लेकिन वो म्यूजिक आपका तभी सुन पाएंगे ना लोग जब तक आप क्लब में आएंगे नहीं, आपके किसी इवेंट को अटेंड नहीं करेंगे. ठीक है, तो वो है. प्लस आप डीजेइंग का एक और एक्सपेक्ट है विच इज प्रोड्यूसिंग म्यूजिक. तो आप कैसा म्यूजिक बनाते हो, और ये म्यूजिक कितने लोग सुन पाते हैं, कितने लोगों तक पहुंचता है आपका म्यूजिक, है ना. आप उसको कैसे मार्केट करते हो, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो ये बहुत सारी चीजें हैं और इट्स अ वेरी टफ जॉब. हमेशा होता है ना कि दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है, तो लोगों को लगता है यार डीजेइंग इज अ वेरी इजी जॉब, आपको जाके म्यूजिक ही तो बजाना है. लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि वो कितने सालों का स्ट्रगल लगता है, कितनी स्लीपलेस नाइट्स लगती है, कितने डार्क सर्कल्स लगते हैं कि आप उस एक मुकाम तक पहुंच पाओ कि लोग आपके आके और आपको सुने आपके इवेंट में. So, right. So let's talk about each one of this one by one. सबसे पहले आपने कहा कि म्यूजिक इम्पोर्टेंट है, तो म्यूजिक में कौन सा जॉनर है जहाँ पे अगर इंडिया में कोई बनाना चाहता है, कोई डीजे बनना चाहता है, तो कौन से जॉनर में सबसे ज्यादा पैसा है? क्योंकि इतने सारे जॉनर्स आ गए, सब लोग अलग अलग जॉनर के डीजे बन रहे हैं. कोई टेक है, कोई EDM है, कोई बॉलीवुड है, कोई पंजाबी म्यूजिक का है, कोई रैगेटॉन प्ले कर रहा है. सबसे ज्यादा चलने वाला जो आपने सवाल पूछा, ये बहुत ही मतलब ये हो जाएगा कि आपने पूछा किस जॉनर में सबसे ज्यादा पैसा है. वो तो आप अगर अपनी फील्ड में आप टॉप पे हो तो आप हर फील्ड में पैसा कमा सकते हो. ठीक है ना. आपने देखा होगा कि एक पान की दुकान वाला है जो बहुत फेमस है, वो भी बहुत पैसे कमा लेता है. ठीक है, और नॉर्मल पान वाला उतना नहीं कमा पाता. वो पान वाला इसलिए कमाता है क्योंकि वो अपनी फील्ड में बेस्ट है. ठीक है, तो अगर आप किसी भी जॉनर में बेस्ट हो तो आप कितने भी रुपीस कमा सकते हो. जो बहुत बड़े EDM डीजेज हैं जो बड़े बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में प्ले करते हैं, सनबर्न, सुपरसोनिक में, दे मेक अ लॉट ऑफ मनी. ठीक है, जो बाकी डीजे जो EDM प्ले करते होंगे, जो नए होंगे, वो शायद उतना पैसा नहीं बना पाते होंगे.
यही बात अगर बॉलीवुड म्यूजिक में आ जाओ तो बॉलीवुड म्यूजिक में यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी ट्रैवलिंग टू डिफरेंट कंट्रीज। बॉलीवुड म्यूजिक के साथ फायदा ये है कि आप वेडिंग्स में प्ले करके बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हो। तो बट जी। यू हैव टू बी गुड इन व्हाट यू डू। आप किसी भी जॉनर में आप अगर बेस्ट करते हो तो आप उस में पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है। बस ये है कि आपको अच्छा होना पड़ेगा, आपको वो उतने साल का स्ट्रगल करना पड़ेगा कि आप वो एक फीस डिमांड कर सको और आपको वो फीस जस्टिफाई भी कर सको आप उस फीस को। हाँ, तो Yeah. ये है कि हाँ, तो सारी So, जॉनर अच्छे हैं। इंडिया मैं में किसी हाँ हाँ, इंडिया में बॉलीवुड ज्यादा चलता है। बॉलीवुड इज समथिंग एवरीवन इज कनेक्टेड टू, एंड नो मैटर व्हाट बॉलीवुड बजते ही सबके पैर थिरकने शुरू हो जाते हैं। एंड यू आल्सो प्ले करेक्ट बॉलीवुड, एंड यू हैव ऑलरेडी ट्राइड अदर जॉनर्स आल्सो। आप बहुत सारे जॉनर्स बजाते हो। विच इज योर फेवरेट जॉनर तो जिसको माय तुमने फेवरेट बहुत इज बजाया, जिससे तुम्हें पॉपुलैरिटी मिली? मेरा फेवरेट जॉनर बॉलीवुड ही है। आई एम अ प्रॉपर बॉलीवुड देसी डीजे। एंड बॉलीवुड सिर्फ इंडिया में नहीं चलता, बॉलीवुड ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है। सो आपने जितनी भी कंट्रीज का नाम लिया, मैं जहाँ जहाँ जाके परफॉर्म करके आया हूँ, मैंने वहाँ जाके बॉलीवुड ही बजाया। मैं रशिया जाके भी बॉलीवुड प्ले करके आया हूँ, मैं अफ्रीका जाके भी बॉलीवुड प्ले करके आया हूँ, मैं सिंगापुर, इस्तांबुल सब जगह बॉलीवुड प्ले किया है मैंने, है ना। क्योंकि वहां पे जाके अगर मैं वहां का म्यूजिक बजाऊंगा तो वो म्यूजिक बजाने वाले तो बहुत लोग ऑलरेडी बैठे हैं, ठीक है ना। तो उनको चाहिए कोई इंडिया से आके इंडियन म्यूजिक बजाए, इसलिए मैंने जाके वहां पे बॉलीवुड म्यूजिक बजाया। तो माय फेवरेट इज बॉलीवुड। अब आप पूछो कि मेरे को किससे पॉपुलैरिटी मिली, तो मैंने एक फ्यूजन किया था एम्पलीफायर ट्रैक के साथ। तो एम्पलीफायर एक या पंजाबी ट्रैक है और मैंने उसका reggaeton मिक्स बनाया, विच बिकेम अ मैसिव मैसिव हिट। बहुत वायरल हुआ वो। उस अपने 2009 की बात है, 2009 में बनाया वो रिमिक्स इतना वायरल हुआ कि आज तक लोग उस रिमिक्स की वजह से मुझे जानते हैं, है ना। राइट। तो एक एक मेरा एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ बहुत सक्सेसफुल हुआ, और उसके बाद मैंने ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखा कि मैं बॉलीवुड ट्रैक्स का reggaeton रिमिक्सेस बनाने लगा। और वो मेरा एक तरीके से एक सिग्नेचर स्टाइल बन गई, और एक मेरा फेवरेट सब जॉनर बन गया कि बॉलीवुड reggaeton कौन बनाता है, रवीश है। अगर आप ये पूछो कि मुझे पर्सनली म्यूजिक कौन सा सुनना पसंद है, तो मेरे को डीप हाउस, reggaeton, मैं हर तरह का म्यूजिक सुनता हूँ। लेकिन व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग, आई एम अ प्योर देसी गाय। फुल बॉलीवुड ढिंचाक ढिंचाक सब बजाता हूँ मैं। अरे खूब नाचे हम तुम्हारे म्यूजिक पे। तो रिमेम्बर द फैशन वीक्स व्हेन वी यूज्ड टू डू इट, राइट राइट। एवरीबॉडी हाँ, डांसिंग ऑन रविश का म्यूजिक। करेक्ट करेक्ट। वो बहुत अमेजिंग पार्टीज हुआ करती थी फैशन शोज वाली। राइट। सो डीजे सिर्फ क्लब में ही नहीं, बल्कि फैशन शो में, वेडिंग्स में, ऐसे आईपीएल जैसे इवेंट्स में भी उनका जरूरत पड़ती है। एवरीवेयर पीपल वांट म्यूजिक, एंड इंडिया बीइंग अ कंट्री जहाँ पे म्यूजिक हर सेलिब्रेशन से रिलेटेड होता है, तो डीजेस के लिए अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती है। सो इफ यू कैन एक्सप्लेन कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स दैट वी हैव मेंशन्ड, एंड वहां पे कैसे कोई डीजे पहुंच सकता है? सिर्फ पहुंचने का तो एक ही जरिया है कि आप अपना नाम बनाओ, आप अपने आप को अच्छे से मार्केट करो, आपका म्यूजिक उतना स्ट्रांग हो कि लोग आपको बुलाएं परफॉर्म करने के लिए। एंड पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। जब मैंने डीजेइंग स्टार्ट करी थी तो मुझे नहीं पता था कि इतने सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं डीजे के लिए। मेरे को तब यही पता था कि क्लब में बजाना है, लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला कि यार लोगों की प्राइवेट पार्टीज भी होती हैं, क्लब्स भी होती है, रेडियो शोज होते हैं, आप रेडियो में भी डीजे बन सकते हो, आप ऐसे स्पोर्टिंग इवेंट्स हो सकते हो। सिर्फ आईपीएल ही नहीं, जो सॉकर लीग होती है आईएसएल, उसमें भी डीजे होता है, जो हॉकी लीग होती है उसमें भी डीजे होता है। तो ऐसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स में आप कर सकते हो, कॉलेज शोज होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, डांडिया, मैं तो डांडिया में भी प्ले करता हूँ, तो डांडिया के इवेंट्स हो गए। और इंडिया तो वैसे भी कहते हैं कि इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, तो कोई ना कोई फेस्टिवल आते रहता है। कभी होली होती है, कभी नवरात्रि होती है, कुछ ना कुछ होती है, तो डीजे की रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ म्यूजिक चाहिए वहाँ एक डीजे की रिक्वायरमेंट है ही है, ठीक है। बिल्कुल। और आई बिलीव म्यूजिक इज एवरीवेयर, म्यूजिक तो हर जगह है। तो पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। पर शोज कैसे मिलेंगे? शोज के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो ये सोचते हैं कि यार घुसते ही अपने को ना बड़े बड़े शोज मिल जाएंगे, हम घुसते ही डीजे टीएस्टो बन जाएंगे। तो आई एम वेरी सॉरी, ऐसा नहीं होता। नॉट एवरीबडी कैन बी अ सुपरस्टार इन अ फ्यू डेज और फ्यू ईयर्स। आपको बहुत टाइम लगता है और कंसिस्टेंट आपको काम करना पड़ेगा। आप रेगुलरली काम करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। बहुत सारे फेलियर्स आएंगे, लेकिन करते रहो, आपका धीरे धीरे नाम बनेगा, ग्रेजुअली बनेगा, और फिर आपको काम करने में भी मजा आएगा फिर। रविश, यू आर अ वेल नोन नेम, तो तुम्हारा तो ऑलरेडी अपनी खुद की एक एजेंसी है, तुम्हारे पर्सनल मैनेजर्स है जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुम्हारे लिए काम लेके आते हैं। इफ देयर इज समबडी न्यू जिसने अभी अभी बस सीखा है, अभी शुरू कर रहा है, तो उसको क्या कोई एजेंसी ऐसी होती है जिसको ज्वाइन करने से वहां से दे कैन गेट वर्क, या फिर खुद से ही किस किस को कैसे अप्रोच करे वो इंसान? देखो, एजेंसी मेरे पास आज है। मेरे को 15 साल हो गए डीजेइंग करते हुए, और मेरे को 15वें साल में एक एजेंसी ने साइन अप किया है, ठीक है।
तो स्टार्टिंग के 14 साल मैंने खुद में ही अपने आप को मैनेज किया है, क्योंकि कोई भी एजेंसी किसी भी नए आर्टिस्ट में कभी हाथ नहीं डालेगी, है ना, जब तक उनको उसमें से रिटर्न नहीं दिखेगा। इससे सेम विथ योर मॉडलिंग एजेंसी, कोई मॉडलिंग एजेंसी किसी फ्रेशर मॉडल को तब तक हायर नहीं करेगी जब तक उनको उसमें पोटेंशियल नहीं दिखेगा कि यार हम इसको काम दिला के, बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू अर्न, राइट, देयर इज नो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप उसी प्रोडक्ट को बेचोगे जिसमें आपको लगता है कि फायदा है। सो वी आर अ प्रोडक्ट फॉर एजेंसीज, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग में आपको खुद को ही अपना काम देखना पड़ेगा, कोई आपको एजेंसीज हायर नहीं करती। नहीं, यंग डीजेज में से बहुत पूछते हैं ये सवाल कि भैया हमें कोई मैनेजर दिला दो। मैं कहा आप काम करते रहो ऐसा कि एक दिन मैनेजर्स आपको सामने से अप्रोच करें कि वी वांट टू साइन यू अप, कि आपको मैनेजर्स को नहीं बोलना पड़े कि मुझे काम रखो। तो काम करते रहो। मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, स्टार्टिंग में तो यू हैव टू डू ऑल टाइप ऑफ इवेंट्स। आपको जो मिलता है, आपको किटी, मैंने स्टार्टिंग में किटी पार्टियां बजाई है, बर्थडे पार्टी बजाई है, यू वोंट बिलीव, मैंने एक बच्चे के मुंडन तक में प्ले करा हुआ है। तो आई हैव प्लेड इन ऑल टाइप ऑफ इवेंट्स। क्यों? क्योंकि जितना मैं प्ले करूंगा उतनी मेरी खुद की प्रैक्टिस होगी, एक्सपीरियंस मिलेगा, और यू नो आई विल अर्न ऑल्सो, एंड धीरे धीरे ऐसे ही नाम बढ़ेगा। आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे, फोटोशूट कराओगे, अपने इवेंट्स की पिक्चर्स डालोगे, वीडियोस डालोगे, धीरे धीरे लोगों को आपके बारे में पता चलेगा, आपका म्यूजिक आएगा। तो आप ऐसे करते रहो, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप एक बड़ा प्रोडक्ट बन जाओगे, यू हैव टू ट्रीट योरसेल्फ एज अ ब्रांड, ठीक है। आप एक बड़ा प्रोडक्ट बन जाओगे तो फिर लोग आपको अपने आप सामने से अप्रोच करेंगे कि यार वी वांट टू हायर यू, वी वांट टू साइन यू अप, लेट्स वर्क टुगेदर। Right. So there is this one question which is popping up again and again, and Gossi X, if I am sure, I don't know if I'm pronouncing the name right. Gossi X ने पूछा है कि कैसे लॉकडाउन में चल रहा है, because लॉकडाउन में तो any which ways the clubs are not, they were not functioning slowly and gradually. अभी तो शुरू हो गए हैं बहुत जगह, जयपुर में भी शुरू हो गए हैं, बट जब लॉकडाउन हो गया था अचानक से, पार्टीज, इवेंट्स, क्लब्स जहाँ से मेजर इनकम होती है हम, मेरे और आप जैसे लोगों की, वो सब काम खत्म हो गया था। So you were very innovative at that point of time. You started a lot of things. So let's talk about that. See, I am a guy जो कि मैं कभी भी खाली नहीं बैठ सकता, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर लॉकडाउन की वजह से मेरे शोज खत्म हो गए तो मैंने बहुत सारे डीजेस को नोटिस किया जिन्होंने सब कुछ करना बंद कर दिया, उन्होंने रिमिक्सेस निकालने बंद कर दिए, उन्होंने कुछ भी करना बंद कर दिया। एंड जब आप कुछ भी नहीं करते हो, खाली दिमाग आपका, यू गो इनटू फ्रस्ट्रेशन, यू गो इनटू डिप्रेशन। वो बहुत सारे डीजेस के साथ हो रहा है आज। मेरे बहुत अच्छे नोन दोस्त हैं जो आज इस प्रॉब्लम से हैं, मतलब उनको वो प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने, ठीक है कि अगर लॉकडाउन है, मैं बाहर शोज नहीं करने जा सकता, दैट मीन्स मैं घर पे और ज्यादा रिमिक्सेस बना सकता हूँ। आई हैव मोर टाइम टू मेक रिमिक्सेस, तो मैं और रिमिक्सेस बनाने लग गया। फिर मैंने थोड़ा सोचा कि यार थोड़ा फनी कंटेंट बनाते हैं, थोड़ा मीम कंटेंट बनाते हैं, तो मैंने वो बनाया, उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। देन आई स्टार्टेड अ टॉक शो कि चलो यंग डीजेस को इंस्पायर करने के लिए दूसरे डीजेस की जर्नी बताई जाए। तो आई स्टार्टेड रवीश टॉक्स। रवीश टॉक्स के मैंने 20 एपिसोड्स करे, ठीक है, और उसके बाद मैंने वो शो को सही टाइम पे मैंने उसको क्लोज भी कर दिया कि लेट्स क्लोज इट, विल स्टार्ट अगेन जब और टाइम मिलेगा। तो यू नो कुछ ना कुछ करते रहो, यू कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड। आई नो इट्स अ टफ सिचुएशन क्योंकि इनकम नहीं है, ठीक है। आपको जितने भी आर्टिस्ट हैं, नॉट जस्ट डीजेस, ऑल द परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, अभी किसी के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है। और अभी जैसे धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं, पता नहीं कब जाके उनको वो इनकम मिलने लगेगी जो पहले मिला करती थी। तो टाइम्स आर वेरी टफ, बट यू हैव टू बी टफर, है ना। आपको और टफ बनना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ करते रहो, कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड। आप जो चीज अच्छी से कर सकते हो, आप रिमिक्स अच्छे बना सकते हो, आप रिमिक्सेस बनाओ, फनी कंटेंट बना सकते हो, फनी कंटेंट बनाओ। आप खाली बैठे हो तो आप कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहो, ताकि आपको वो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन आपको नहीं मिले, जिससे आपको कल को ये नहीं हो कि एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट को ये फील्ड छोड़नी पड़ गई, जो कि अभी बहुत हो रहा है कि बहुत सारे डीजेस हैं जो दे आर लीविंग डीजेइंग एंड वो कुछ ना कुछ जॉब ज्वाइन करने की सोच रहे हैं कि यार कोई जॉब ज्वाइन कर लें अभी, बिकॉज दे हैव टू यू नो प्रोवाइड फॉर देयर फैमिली। नथिंग बैड इन दैट, यू नो, सिचुएशंस आर लाइक दिस, बट आप कुछ ना कुछ करते रहो, मेरा तो यही सजेशन है सबको। हाँ, and even if somebody is trying to take up a job तो करो अभी। I am sure that पैसे सबके लिए important है, and the time is so uncertain। मुझे भी अगर कोई जॉब मिलेगी, I'll take it, yeah। तुम तो यार entrepreneur लोग हो, तुम्हें क्या जरूरत है जॉब की? वो बट स्टिल अभी तो नो, वो लगता है ना, वो लगता है यार। अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि यू नो इट्स बीन मोर देन 6 months लॉकडाउन हुए और वो सब कुछ हुए, अभी तक क्लब्स ओपन नहीं हुए हैं। एंड आई एम वेरी सैड कि गवर्नमेंट की तरफ से नाइट लाइफ एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर कोई फोकस नहीं है। जो होटल्स पहले भरे हुए रहते थे वो होटल्स एम्प्टी जा रहे हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट्स खाली जाते हैं, नाइट क्लब्स खाली जा रहे हैं, और यू नो बहुत बुरी हालत है। तो और उस पर कोई फोकस भी नहीं है गवर्नमेंट का, उनके लिए कोई प्रायोरिटी भी नहीं है। बाकी सारी इंडस्ट्रीज खुल चुकी हैं,
सिर्फ एक यही है नाइट लाइफ इंडस्ट्री जो अभी तक बंद है, यू नो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अभी तक बंद है। बिल्कुल। एंड तो मुझे तो लग तो रहा है कि अभी दिसंबर तक तो आई थिंक बंद ही रहने वाली है बिकॉज ऑफ द वे केसेस आर इंक्रीजिंग एवरीवेयर। केसेस तो हमेशा बढ़ते ही रहेंगे, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट वही है ना कि जब व्हेन एवरीथिंग एल्स इज ओपन तो ये भी ओपन होना चाहिए, बिकॉज इट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारे, आप एक नाइट क्लब में देखो, बारटेंडर्स होते हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ होता है, डीजेज होते हैं, कितने लोगों को उससे यू नो एम्प्लॉयमेंट मिलता है। वो सारे लोग, वो लोग हैं अभी जो आने यू नो डेली कमाने वाले लोग हैं। तो उनकी क्या हालत हो रही है, क्योंकि पिछले 6 महीने से वो लोग घर पे बैठे हैं। आज की तारीख में किसके पास 6 महीने की सेविंग्स होती है? किसी के पास नहीं होती ना। तो या उन लोगों की वेरी बहुत बुरी डिफिकल्ट। हालत है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी ऐसी हालत हो रखी है, तो आई कैन फील, आई कैन अंडरस्टैंड, एंड मैं भी उन्हीं में से ऐसा हूँ कि हाँ ठीक है, जो बंदा पहले यू नो पूरा मंथ ट्रैवल करता रहता था शोज के लिए, वो घर बैठा, एयरपोर्ट देखे टाइम हो गया कैसा होता है, एयरपोर्ट भूल गए हम तो। Yeah, it must have happened with you also because I know you were traveling quite a lot. तुम रोज ही कहीं या ना कहीं, कभी ये कंट्री वो कंट्री, ये सिटी वो सिटी, you were playing everywhere and suddenly लॉकडाउन हो गया, घर में बंद कर दिया, now you're with your family, parents, थोड़ा एडजस्टमेंट में भी कभी इशू होता है फैमिली के साथ क्योंकि आप रहती नहीं हो घर यस में। इरिटेशन भी आता है कि यार मैं घर में कैसे, मेरे को हो रहा था, कल सुबह हो रहा था, I was like what has happened, my life is ruined, I'm sitting inside the house, करेक्ट या but I या think this is just the time and it will also pass. And how do you maintain and manage to keep a positive mindset in सब चीजों में, इसमें इतनी मैंने सारी जैसे नेगेटिव। मैंने पहले बताया ना कि यू कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड। खाली दिमाग हाँ शैतान का घर होता है। जिस दिमाग में कुछ चल रहा होता है वहाँ पे ये फालतू के ख्याल नहीं आते ना। तो आप अपने आप को हाँ। ऑक्यूपाई रखो, और म्यूजिक तो इज द बेस्ट वे टू कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड। जो लोगों को म्यूजिक बनाना नहीं आता वो म्यूजिक सुन के अपने आप को ऑक्यूपाइड रखते हैं। हमें बनाना आता है तो हम बना के ऑक्यूपाइड रखते हैं। तो मैं करता ही रहता हूँ, मैं कुछ ना कुछ म्यूजिक से रिलेटेड करता रहता हूँ। आई कीप माई सेल्फ ऑक्यूपाइड, क्योंकि खाली बैठते ही, अगर मैं भी खाली बैठ जाता हूँ ना किसी दिन, अगर मैं म्यूजिक बनाने का मूड नहीं है, मैं खाली बैठा हूँ, तो मेरे मन में भी ऐसे ही बुरे ख्याल आते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ। मैं वो नहीं करूँ। आप नाइट लाइफ के साथ बहुत जुड़े रहते हो, अभी तो खैर इन द लॉकडाउन वी आर नॉट एसोसिएटेड बट अदरवाइज हम्म, नाइट लाइफ से एसोसिएटेड है। नाइट लाइफ में बहुत चीजें होती हैं, हर अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, हम सेलिब्रिटीज से भी मिलते हैं। तो हम्म, ये जो अभी चल रहा है टीवी पे सब ड्रग्स एंड ऑल दैट थिंग्स विच आर हैपनिंग, जो रिपब्लिक भारत हम्म, बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर रहा है, उसके बारे हम्म। में आपका क्या कहना है? इज See, इट रियल, इज इट मेड अप? I have observed all this. It's in every field, you know. बॉलीवुड के अलावा भी और बहुत सारी फील्ड्स में है। आपकी फील्ड में भी है, मेरी फील्ड में भी है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली वी आर ऑल कंबाइंड इनटू वन इंडस्ट्री कॉल्ड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, और राइट। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत यू नो इट्स अ डार्क फेज। एवरीबडी नोज अबाउट इट, बट कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि एवरीबडी इज स्केर्ड टू टॉक अबाउट इट। अभी ये चीज चालू हुई है, अब ये देखो कहाँ तक जाती है और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आई एम नोबडी टू कमेंट अबाउट इट, बिकॉज आई कीप, मैं हमेशा इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को अगर पता भी चलता है कि कोई XYZ बंदा इस चीज़ में इन्वॉल्व है, तो मैं उससे जितनी डिस्टेंस बना सकूँ उतनी डिस्टेंस बना के रखता हूँ। मैं इन सब चीज़ों में ना कभी इन्वॉल्व हुआ हूँ, ना कभी होऊंगा। मैं अपने काम से हाँ। मतलब रखता हूँ। अपना काम करो, अपने चीज़ें, एक चीज़ का नशा है पैसे का, पैसे कमाओ और खुश रहो। And I know for a fact that Ravish is not involved with anything because I know you personally. इतने सारे लोग आसपास होते हैं, I'm sure people must be offering or doing stuff around you. तो उस सिचुएशन में, उस सिनेरियो में, how do you keep your brain so strong कि तुम्हें पता है ये मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है? इट्स ऑल अबाउट योर विल। आप विल पावर आपकी स्ट्रांग हो तो यू नो नोबडी कैन, आपको कोई जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकता है आपके साथ, है ना। हाँ। आप खुद ही करते हो जो भी करते हो। एवरीथिंग इज योर ओन डिसीजन। कोई आपको जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकता। तो अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आपको खुद को नहीं करना, तो फिर कोई कुछ नहीं करा सकता आपसे। Absolutely right, Ravish. Acha, you're also like a brand ambassador for many brands. How did you get those collaborations? And किसी डीजे को ऐसे collaboration करना है तो वो क्या करे? सी अगेन, ये सारे कोलैबोरेशन मेरे पास खुद सामने से चल के आए, यू नो, बिकॉज ऑफ माय नेम और माय सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग। मोस्टली दीज ब्रांड्स, अब ये ब्रांड्स भी देखिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ब्रांड्स दे आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट। दे विल हायर अ पर्सन जिसकी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग अच्छी है, क्योंकि उनको भी उससे रिटर्न चाहिए। तो लकीली आई हैव अ गुड फैन फॉलोइंग ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो ऐसे मुझे ब्रांड्स ने अप्रोच करा। तो आई बिलीव द फर्स्ट ब्रांड जिसने मेरे को अप्रोच किया, दैट वाज you know a clothing brand called TikTolly. So I had a collaboration with them. They used to give me clothes to wear for my events, and बदले में मैं उनको प्रमोशन करता था।
तो वहाँ से स्टार्ट हुआ. देन आई बिकेम ब्रांड एम्बेसडर फॉर द वॉच फैक्ट्री, है ना. वो वॉचेस का ब्रांड है, उनको प्रमोट करता था. देन द बिगेस्ट कोलैबोरेशन जो मैंने किसी ब्रांड के साथ किया, दैट वाज मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक. तो जब मॉन्स्टर Right. एनर्जी ड्रिंक इंडिया में लॉन्च हुई थी, तो उसका काफ़ी अच्छा और काफ़ी लंबा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था. एंड वेरी गुड मनी, बहुत अच्छा पैसा भी उसमें था. एंड एक पूरा टेलीविजन कमर्शियल उसके लिए शूट हुआ था एंड ऑल. तो दैट वाज वेरी गुड. सो वो ब्रांड्स ने सामने से अप्रोच किया, बहुत सारे ब्रांड्स अप्रोच अभी भी आते रहते हैं मेरे पास, कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं. जो मेरे बजट को सूट करता है वो उसके साथ हो जाता है, जो नहीं सूट करता वो नहीं हो पाता. तो आते रहते हैं. इसके लिए अगेन यू हैव टू ट्रीट योरसेल्फ एज अ ब्रांड, है ना. अगर आप ब्रांड हो तो ही दूसरे ब्रांड आपको अट्रैक्ट करेंगे. आपको उस हिसाब से अपनी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग एंड आपका प्रमोशनल पीआर सब कुछ उस तरीके से मेंटेन करके रखना पड़ेगा. Yeah, and in the meantime, DJ Tarun from Bombay has joined us. Hi Tarun, hi fi. Hi Tarun, how are you? There are a lot of अच्छा, friends. मेरा I रमेश. just want to. Yeah. Okay. Yeah. You want to welcome There's some a lot, people? yeah. A lot of friends of mine. Ankit is there. Ankit Imnani is here. Ankit. I saw Rohit in the starting. Then DJ Sunny is here. So a lot of friends. मैं एक सबका नाम शायद नहीं ले पाऊंगा, तो मैं सबको एक साथ कंबाइन हेलो बोल देता हूँ. Hello guys. Combined hello and welcome everybody on वार्तालाप with आकृति. I am in conversation with DJ Ravish और हम सीख रहे हैं रविश से how to start a career into DJing. And रविश, जैसे Yeah. आप तो अभी ब्रांड एम्बेसडर भी हो, आप म्यूजिक भी बना रहे हो, आपने टॉक शो भी किया. सो दिस इज बेसिकली डाइवर्सिफाइंग फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग. और ये Yeah. डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग फील्ड में है, लेकिन ये सब कम्युनिकेट कंबाइन होके एक ही फील्ड से जुड़ता है, विच इज म्यूजिक. राइट. Entertainment समझ लो, म्यूजिक समझ लो. Yeah. राइट. अभी लॉकडाउन में मैंने ये भी देखा कि लाइक तरुण इज ऑल्सो हियर, ही कैन बी वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. पीपल आर प्लेइंग म्यूजिक ऑनलाइन यूजिंग देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज अ प्लेस जहाँ पे वो म्यूजिक बजाते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, डांस कराते हैं, सैटरडे नाइट पार्टीज. जब स्टार्ट हुआ था, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो कुछ डीजेस ने अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए लाइव जाना स्टार्ट करा कि जी. फैन फॉलोइंग को मैं एंटरटेन करूंगा म्यूजिक, विच वाज गुड. ठीक है, अ डीजे एंटरटेनिंग हिज क्राउड, नो प्रॉब्लम इन दैट. बट देन इसमें भी ना हम डीजेस का एक्सप्लॉइटेशन चालू कर दिया ब्रांड्स ने. सो ऐसे ऑफर आते थे कि यू प्ले फॉर माई ब्रांड और माई पेज, आपको मेरे पेज से लाइव जाना है, और जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी ना, तो हम आपको शो देंगे, है ना. तो लोगों ने उस ट्रैप में फंस के ना, लॉट ऑफ पीपल हैव परफॉर्म्ड इन अदर, दूसरों के पेज पे जाके लाइव जा रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं. एंड इसमें बहुत सारे बड़े बड़े जो नाम है ना, हु कैन पे फॉर दीज डीजे सर्विसेज. बहुत, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े एफएम स्टेशंस हैं, बहुत बड़े बड़े म्यूजिक फेस्टिवल के पेजेस हैं, जो कि चाहे तो एक डीजे को, आई एम नॉट सेइंग कि कोई डीजे 50,000 रुपए चार्ज करता है, आप उसको 50,000 रुपए दो, लेकिन आप वो दे कैन इजीली पे देम 5,000 और 10,000 रुपीज एज एन एप्रिसिएशन अमाउंट कि आप हमारे पेज पे लाइव गए हो, 1 घंटा 2 घंटा आपने प्ले करा. लेकिन सबने फ्री में काम करवाया डीजेस से. एंड डीजेस इस ट्रैप में फंसे भी हैं कि नहीं यार हम कर लेते हैं, घर पे खाली तो बैठे हैं, प्ले कर लेते हैं. यू आर गिविंग योर टाइम. आपका एक ही तो आर्ट है जिससे आप पैसे कमा रहे हो, एंड यू आर डूइंग इट फॉर फ्री. आप उसको फ्री कर रहे हो, आप लोगों को वो गलत आदत लगा रहे हो कि ये बंदा तो अवेलेबल फॉर फ्री है. तो मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आए थे कि आप हमारे पेज से लाइव चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो. पहला प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, आई डोंट हैव अ दिस कंसोल एट होम. तो कंसोल नहीं है तो बात ही खत्म होगी, मैं परफॉर्म कर ही नहीं सकता, तो मैं वैसे मना कर देता. और दूसरी चीज, मुझे मालूम था कि यार ये सिचुएशन 6 महीने साल भर बाद, यू डोंट नो कब नॉर्मल होगी, और तब जाके आप मुझे याद रखोगे भी या नहीं रखोगे, आप मुझे शो दोगे भी या नहीं दोगे, आई डोंट नो. शो मुझे मिलना होगा, अगर मेरी कैपेबिलिटी है तो आप वैसे भी दे दोगे मेरे को, ठीक है ना. लेकिन मैं आपके पेज पे जाके लाइव करूं और वो सब करूं, वो उस ट्रैप में मुझे नहीं फंसना. अगर मुझे लाइव जाना ही होगा तो मैं अपने खुद के पेज पे चला जाऊंगा. एटलीस्ट मैं मेरे पेज की एंगेजमेंट बढ़ाऊं, मैं मेरे पेज की रीच बढ़ाऊं, मैं मेरे पेज पे कमेंट्स लेकर आऊं. I'll divert the crowd there. एटलीस्ट आपको तो फायदा हो ना उसमें. अगर आप टाइम डेडिकेट कर रहे हो, अपना टैलेंट डेडिकेट कर रहे हो, तो एटलीस्ट पेज पे फॉलोअर्स आए. और स्टार्टिंग में ये लोगों ने इसमें इंटरेस्ट भी था, लोग देखते भी थे डीजेस को परफॉर्म करते हुए. जो इनिशियल लॉकडाउन था वो 21 डेज का और ये सब. बाद में तो मतलब अब लोग, कोई भी डीजे लाइव जाएगा, आप देखोगे 5 लोग देख रहे होते हैं, 10 लोग देख रहे होते हैं. नोबडी इज इंटरेस्टेड यार. अब म्यूजिक सुनना है तो लोग स्पॉटिफाई पे सुन लेते हैं, आईट्यून्स पे सुन लेते हैं आजकल म्यूजिक सुनना. तो अब वो इंटरेस्ट भी नहीं रहा. शुरू में वो नई चीज थी, तो एवरीबडी वाज इंटरेस्टेड कि हाँ माय फेवरेट डीजे इज प्लेइंग. नाउ इट हैज बिकम सो रिपीटेटिव कि किसी को इंटरेस्ट नहीं आया. तो मैंने ये चीज करी नहीं. मैंने ऐसी चीज करी कि आई स्टार्टेड अ टॉक शो की जिसमें मैं
लोगों अच्छे अच्छे डीजेस को बुलाऊं और सबको उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बताऊं। तो आई डिड दैट। Right. वो भी मेरे को जिस दिन लगा कि हाँ अब व्यूअरशिप मेरी धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है, तो उसको बंद कर दो, ठीक है। तो मैंने Right. वो शो भी बंद कर दिया क्योंकि रिपीटेटिव होता जा रहा है ना, एवरी अदर पर्सन इज डूइंग अ टॉक शो, ठीक है, सेम Right. गेस्ट रिपीट होते हैं, सब कुछ होता है, तो यू डोंट डू समथिंग जो कि बहुत रिपीटेटिव है, आप कुछ अलग ही करो। बिल्कुल बिल्कुल, you're absolutely right रवेश, अलग करना ही चाहिए and तुम हमेशा अलग अलग चीजें, नई नई चीजें ट्राई करते हो। हेलो टू एक डीजे ये जो सनी। बात की स्पॉटिफाई की। एक सेकंड हाँ में, डीजे सनी मेरा भाई, डीजे तरुण माखीजानी, डीजे एस्टीम एंड या आर्यन शुक्ला, हेलो रोहित या वंस अगेन एंड एडी रिलोडेड, आप सभी को मेरा बहुत बड़ा हेलो, नमस्ते। और वो नमस्कार, क्या सॉरी, सुस्वागतम, स्वागतम, अति स्वागतम, वड़क्कम। अच्छा, तो मैं ये बोल रही थी कि तुम्हारा स्पॉटिफाई पे पॉडकास्ट भी है। सो हाउ डिड यू मैनेज टू गो ऑन स्पॉटिफाई एंड रन अ पॉडकास्ट जो रेडियो पे भी बज रहा है, वहां पे भी बज रहा है? सो पॉडकास्ट का तो क्या है कि इट्स रवीश पॉडकास्ट नाम से मैं बॉलीवुड पॉडकास्ट ये सब करता हूँ। तो I make it, I upload it, and then it goes to all the platforms. So it's on Spotify, iTunes, Google Podcast, and it's on my Hear This account also. तो वो भी एक यही है कि अगर मेरे को अपना म्यूजिक लोगों तक पहुंचाना है ना, तो आई रेदर डू पॉडकास्ट इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइव 3-4 घंटे में प्ले कर रहा हूँ घर पे। अगेन दैट इज हाँ माय परसेप्शन, माय थिंकिंग, हो सकता है मैं गलत हूँ किसी और की आईज में, दूसरों के लिए ये है कि नहीं यार हमें तो फेसबुक पे लाइव प्ले करना है। मेरी थिंकिंग ये है कि पॉडकास्ट लो, ताकि वो पॉडकास्ट फिर सब जगह चले। एंड आपने भी ये चीज नोटिस करी होगी कि इस टाइप के पॉडकास्ट, आप कभी सलून जाते हो तो सलून में चल रहे होते हैं नॉन स्टॉप पॉडकास्ट डीजेस के, बहुत हाँ सारे कैफेज में चल रहे होते हैं, बहुत सारे क्लब्स में चल रहे होते हैं। तो दैट्स व्हाई आई डू इट, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर डीजेस, बहुत सारे डीजेस जो पॉडकास्ट बनाते हैं, बहुत सारे डीजेस करते हैं, तो नथिंग बैड इन दैट। तो मैं करता रहता हूँ कुछ ना कुछ, आई कीप ऑन डूइंग। या, और पॉडकास्ट बनाया, उसमें अच्छी सी ओपनिंग वॉइस भी है, रविश की भी वॉइस आती है, रविश इज प्लेइंग म्यूजिक एंड यू आर टॉकिंग समथिंग, सो दैट इंटरेक्शन बिटवीन अ डीजे एंड द ऑडियंस इज इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू मेक दैट रिलेशनशिप विद पीपल। करेक्ट सो जो करेक्ट करेक्ट। डीजेस हैं जो कर रहे हैं ऐसे, उनको आप क्या सजेशन दोगे कि हाउ दे कैन स्ट्रेंथन दिस रिलेशनशिप विद देयर ऑडियंस? See, मैंने हमेशा यंग डीजेस को एक चीज पे फोकस किया, दैट योर माइकिंग स्किल्स शुड बी वेरी गुड। जो डीजे माइक के ऊपर अच्छे से बोल सकता है ना, वो अपनी म्यूजिक के मिस्टेक्स भी हाइड कर सकता है। एंड माइक पे ओह बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उससे अपने क्राउड से कनेक्शन बना के रखते हो। सो लेट्स से मैं किसी और सिटी में गया हूँ जहाँ पे मुझे कोई नहीं जानता, ठीक है, मैं वहां हाँ जाके म्यूजिक प्ले करना स्टार्ट करूंगा, तो आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ऑन द माइक कि हेलो एवरीवन, दिस इज डीजे रवीश, डीजे फॉर द नाइट, एंड बिग हेलो टू ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द हाउस टुनाइट। अब मैं इतना बोलूंगा तो पीपल, उनको मजा आएगा, दे विल चीयर अप, है ना। आपने भी देखा है कोई या डीजे माइक पे कुछ भी बोलता है तो लोग एकदम से चीयर अप करने लगते हैं, दे स्टार्ट हूटिंग एंड ऑल। वही एक डीजे चुपचाप मुंह नीचे करके बजा रहा होगा तो लोगों को लगेगा कि ये बंदा खुद एंजॉय नहीं कर रहा, तो हम क्या एंजॉय कर पाएंगे, यू हाँ हैव टू बी वेरी इंटरेक्टिव। जो डीजे माइक के ऊपर जितना अच्छी तरीके से बोल पाता है, वो अपना क्राउड को उतनी अच्छी तरीके से एंटरटेन कर पाएगा, क्राउड से उतना अच्छा कनेक्शन बना पाएगा। तो योर माइकिंग स्किल इज वेरी गुड। अब इसमें आप इंग्लिश में बोल सकते हो, बहुत अच्छी बात है, आप इंग्लिश हिंदी मिक्स बोल सकते हो, दैट इज मच बेटर देन दैट, क्योंकि आजकल आप हिंदी में भी बोलते हो, दैट इज ऑल्सो ओके। तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आप उस लैंग्वेज में बोलो और अपने क्राउड के साथ इंटरेक्शन रखो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीजेइंग में और माइकिंग जिस स्किल्स भी इज वेरी लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट। अपने क्राउड को देख के भी बोलना पड़ता है ना। सपोजिंगली यू हैव गॉन टू अ प्लेस जहाँ पे द क्राउड इज ओनली हिंदी स्पीकिंग और वहां पे आप इंग्लिश में बोल रहे हो, तो लोगों को समझ ही नहीं आएगा। एंड वेर एज यू गो टू अ फैशन पार्टी एंड यू स्टार्ट टू टॉक इन हिंदी, देन पीपल विल बी लाइक अरे ये क्या हो गया, विच आई फील इज वेरी स्ट्रेंज। हिंदी तो इज यू आवर हैव, मदर हाँ, टंग, तो किसी को ऐसा नहीं वो करना चाहिए, बट करते हैं हाँ, हमारे इंडिया में। वो अपने इंडिया में ही होता है कि यू आर अशेम्ड ऑफ योर ओन लैंग्वेज, वो इंडिया में ही होता है। या लेकिन बाहर की कंट्रीज में तो आप जाओ, वो लोग तो दे प्राउडली स्पीक देयर लैंग्वेज ना, वहाँ तो सब जगह उसी लैंग्वेज में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे ही नहीं जब तक कि आप उनसे इंग्लिश में बात नहीं करोगे। बट इसमें भी आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए कि अब अगर मैं कॉलेज शो में जाता हूँ तो मैं जाके अपने आप को हेलो गाइस आई एम डीजे रवीश ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, मैं वहां जाके माइक उठाते बोलूंगा क्या हाल है दोस्तों। तो या जो 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 मैसिव क्राउड है कॉलेज का, उनको वैसे मजा आएगा कि अरे यार ये अपने अपने लेवल का बंदा है, ठीक है ना, आप उनके साथ हाँ उसी लेवल पे कनेक्ट हो जाओगे फटाक से।
और वही आप एक फैशन शो में जाओगे जैसे आपने बताया, या किसी हाई एंड क्लब में जाओगे, तो आप वहां जाके इंग्लिश में बोलोगे, जितनी अच्छी इंग्लिश आप बोलोगे उतने अच्छे आप उन क्राउड के साथ उतनी जल्दी कनेक्ट हो पाओगे। तो ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। एंड फिर यही होता है कि 3-4 जब पेग्स डाउन हो जाते हैं सब, फिर उसके बाद आप हिंदी में बोलो तो लोगों को हिंदी में भी मजा आने लगता है ना? कि आप स्टार्ट तो करते हो, शेप ऑफ यू से, एवरीबॉडी लव्स शेप ऑफ यू, यू नो, गैसोलीन, और 3-4 पैक के बाद आप 7 समुंदर नहीं बजाओ तो फिर लोगों को मजा नहीं आता। ठीक है, तो ये तो होता ही है, हर पार्टी में होता है। राइट, रेट्रो म्यूजिक भी बहुत बड़े तरीके से वापस आया है, बट बिफोर आई टॉक अबाउट दैट, तरुण बोल रहा है बहुत बार उसने मेरा नाम लिया है ऑन द माइक। यस, आई हैव गॉन टू हिज लाइव सेशंस एंड ही हैज टेकन माय नेम अगेन एंड अगेन, एंड इट्स रियली नाइस, इट फील्स नाइस, यू नो, एज अ Yeah, so पर्सन see, व्हेन यू आर गोइंग टू it feels समबडीज nice. पार्टी एंड दे टेक योर नेम। So for him you are a crowd, और तुम उसका लाइव सेशन देख रहे हो and he has given you a small shout out, so that means a big thing for you. You became happy. And DJs, we are entertainers, you know. आप Right. किसी को entertain कर रहे हो and you are bringing smile on their faces, that's the best thing you can do. तो यू नो, आप अपने क्राउड, आप किसी को पर्सनली जानते हो, गिव हिम अ शाउट आउट। आप किसी को पर्सनली नहीं जानते हो तो आप वैसे बोल दो कि यू नो, टू ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द हाउस, आप वैसे बोल दो, टू ऑल द हैंडसम बॉयज इन द हाउस, वैसे बोल दो। तो आप यू कीप ऑन, यू नो, गिविंग शाउट आउट, यू कीप ऑन अनाउंसिंग। इफ अगर किसी का बर्थडे आप वो अनाउंस कर दो, आपको कुछ सॉन्ग के बारे में इंट्रोड्यूस करना है, अब कोई आपने नया सॉन्ग बजाया जो अभी तक लोगों को पता ही नहीं है, तो आप उसके बारे में बता सकते हो कि दिस इज अ ब्रांड न्यू ट्रैक बाय XYZ आर्टिस्ट एंड यू नो recently released, this is my new remix। आप वो सब बताओ तो क्राउड को इंटरेक्शन, क्राउड को भी पता रहेगा कि हाँ यार, दिस डीजे इज एजुकेटिंग अस। तो वो बहुत जरूरी है। माइकिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी कम्युनिकेशन Right. स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रमेश, अलग अलग रिक्वेस्ट भी आती होंगी तुम्हारे पास जब तुम बजाते हो, यू गो एवरीवेयर, सो हर तरफ अलग अलग ऑडियंस होती है, व्हिच इज द वियर्डेस्ट रिक्वेस्ट दैट यू हैव गॉट और द मोस्ट अरे एम्बैरेसिंग और समथिंग लाइक दैट? बहुत 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 लंबी लंबी स्टोरीज हैं इसके लिए। and मतलब one of it। uh, uh, ठीक है, चलो, I'll tell you one बहुत ही मतलब अजीब सा था ये। So I was playing for a very high end wedding show, you know, मतलब एक बहुत उस it was in गुजरात, एंड वहाँ के मतलब एकदम टॉप जो सबसे रिच लोग होते हैं ना, वो लोग थे वहाँ पे, मिनिस्टर्स लोग भी थे। एंड मैं प्ले कर रहा हूँ और बहुत अच्छी पार्टी चल रही है, सब कुछ चल रही है। एंड देन एक भाभी जी होती हैं जो एकदम नई मैरिड होती हैं, वो मेरे पास आई है ना, आके बोली कि यार प्ले दैट न्यू सैफ अली खान सॉन्ग। तो अब क्या होता है कि यार यू आर प्लेइंग, आपने आपके कान में हेडफोन भी लगे हैं, बाहर इतना लाउड म्यूजिक है, उस पे आके कोई अगर सीधे सीधे आके ट्रैक का नाम बोल देना कि यू प्ले आहू आहू, तो समझ में आता है। अब आगे बोलो प्ले सैफ अली खान सॉन्ग, तो सैफ अली खान के तो 100 गाने हैं, कौन सा बजाना है आपको पता ही नहीं चलता। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार कौन सा बजाना है क्या। तो अब आप कंफ्यूज हो गए कि यार क्या है। मैंने कहा कौन सा सॉन्ग? बोला अरे दैट न्यू सैफ अली खान सॉन्ग यार, एकदम ब्रांड न्यू आया सैफ अली खान सॉन्ग। तो उस टाइम पे लव आजकल नई नई आई थी, तो ऐसे आहू आहू, बोले नहीं। मैंने कहा वो चोर बाजारी, बोले नहीं। मैंने 1-2 गानों के और नाम लिए। बोला अरे यार तुम्हारे पास है ही नहीं यार गाना, यार तुम्हारे पास है ही नहीं गाना यार, किस टाइप के डीजे हो, तुम्हारे पास नया गाना ही नहीं है सैफ अली खान का। मैं वाज लाइक यार कौन सा गाना आ गया सैफ अली खान का। मैंने कहा चलो ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर वो वापस आई, बोला व्हाट हैपेंड यार, प्ले दैट सैफ अली खान सॉन्ग। यार कौन सा गाना, आप मेरे को नाम तो बताओ गाने का कौन सा है, आई विल प्ले इट। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है प्ले करने में, बट आप मेरे को नाम तो बताओ। बोला अरे दैट लेटेस्ट सैफ अली खान सॉन्ग विद दैट फॉरेन चिक यार, फॉरेन मॉडल के साथ उसका एकदम लेटेस्ट गाना आया है ना, वो चलाओ। हाँ। अब मैं फॉरेन मॉडल के साथ कौन सा गाना, मेरे नहीं समझ में आ रहा। अरे तुम्हें भी चाहिए, उस तब तक रिलीज ही नहीं हुई थी मूवी, वो उससे भी पुरानी बात है। तो आई वाज लाइक यार कौन सा गाना है यार, कौन सा गाना। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा छोड़ो यार, फॉरगेट इट, क्योंकि मेरा पूरा माइंड उस चीज में खराब हो जाता है ऐसे कोई कुछ कर देता ना। एंड देन शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डांस फ्लोर एंड डूइंग थम्स डाउन, क्योंकि उसका गाना नहीं चल रहा, एवरीबडी एल्स इज डांसिंग, मतलब 99 पीपल आर डांसिंग, वो अकेली थम्स डाउन कर रही है क्योंकि उसको उसके पसंद का गाना नहीं मिला। और मेरे को देख देख के मेरा दिमाग खराब हुआ। मैं कि यार मैं कौन सा गाना आ गया, मेरे दिमाग में वही चल रहा, सैफ अली खान सॉन्ग न्यू मॉडल, अब कैसे पता है। तो थोड़ी देर बाद ऐसे ही आई प्लेड हनी सिंह का एक ट्रैक आया था उस टाइम पे, ब्रेकअप पार्टी, आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रख ली है, ऊपर 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 इन दी एयर। तो आई प्लेड दैट सॉन्ग, जो कि मेरे उस टाइम पे नया नया ट्रैक था, तो आई प्लेड दैट एंड शी केम रनिंग टू मी, बोला यही तो चाहिए था। एंड आई वाज लाइक इस गाने में सैफ अली खान कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया सैफ अली खान इस गाने के अंदर, दिस इज हनी सिंह सॉन्ग। बोलो नो नो आई वांटेड दिस ओनली, यही चाहिए था मुझे।
एंड मैं वो सॉन्ग इसलिए प्ले नहीं करना चाहता था बिकॉज दैट वाज एन एंगेजमेंट पार्टी। मैं वो गाना प्ले नहीं करना चाह रहा था क्योंकि वो गाना ब्रेकअप पार्टी है, बट स्टिल हाँ। मैंने वो चलाया और वो शी केम रनिंग कि यार मेरे को ये वाला चाहिए था। तो लोग ऐसी वियर्ड रिक्वेस्ट करते हैं। एक बार मेरे साथ हुआ था, एक बंदा आके मेरे को बोला मेरे को वैभव गाना चाहिए। And I'm like, वैभव का? हाँ बोला वैभव, Okay. प्ले वैभव। मैंने कहा वैभव क्या होता है? बोला गाना है ना वैभव, यू प्ले वैभव। मैंने कहा वैभव कौन सा गाना आ गया? वो मेरे पीछे पड़ गया, मतलब उसने मेरे प्राण पी लिए कि प्ले वैभव। और मैंने कहा वैभव कौन सा? बोला एकदम ब्रांड न्यू इंग्लिश गाना है यार, यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश और व्हाट। एंड देन क्या होता है, लोग आपके ऊपर चढ़ जाते हैं कि जैसे आपको पता होता है ना कि आपके पास वो गाना नहीं है या आप समझे नहीं, तो लोग आपके ऊपर चढ़ जाते हैं, आपको गंवार बोल देते हैं 1 सेकंड में कि यार वैभव कौन सा गाना हो गया, वैभव यू डोंट हैव वैभव, प्ले वैभव। हमने क्या हो गया, वैभव कौन सा गाना आ गया, वैभव गाना। थोड़ी देर बाद आई अंडरस्टूड ही वांटेड वैभव 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 वैभव, सो ही वाज सेइंग वैभव, सो ही वाज सेइंग वैभव। तो ऐसे ऐसे बहुत बहुत वियर्ड रिक्वेस्ट होती है कि लोग आके बोलेंगे। अच्छा गाना क्या होता है, गाने का जो नाम होता है ना, वो आपको कभी भी नाम नहीं बताएंगे, वो गाने हाँ। के बीच में से एक लाइन बोलेंगे, ये प्ले वाला। दैट, है ना कि ना आई सी, बिल्कुल। जैसे वो एकॉन का सॉन्ग आया था ब्यूटीफुल, तो ये नहीं बोलेंगे जी। एकॉन ब्यूटीफुल, वो ये बोलेंगे आई सी यू इन द क्लब प्ले कर दो। I see you in the club. Yeah. अब आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि यार आई सी यू इन द क्लब कौन सा गाना है। आपको पूरे गाने की लिरिक्स याद करनी पड़ेगी, फिर आपको आई सी यू इन द क्लब यू आर सो ब्यूटीफुल। अच्छा इसको एकॉन का ब्यूटीफुल चाहिए। ऐसे ही एक बंदा मेरे पास एक बार आके बोला था कि प्ले भाई साहब, भाई और मेरा साहब कौन दिमाग सा खराब, गाना है? प्ले भाई साहब। उनका भाई साहब कौन सा गाना आ गया, और आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप अपना सारा काम छोड़ दोगे, आपका पूरा सेट खराब हो जाएगा, जो आप बजाने वाले आप वो भूल जाओगे, जो आपने बजाया आप वो भूल जाओगे, आपका चेहरा उतर जाएगा, आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज चलेगी भाई साहब। यार व्हाट इज भाई साहब? मतलब प्ले भाई साहब यार, यू नो न्यू ट्रैक, यू डोंट नो न्यू ट्रैक भाई साहब, यू आर अ शिट डीजे, यू आर अ बैड डीजे, यू डोंट नो भाई साहब। ये तो- गाना कौन सा है? अभी मुझे भी सुनना है, मिस्ट्री हो रही है। राइज अप, सुना गाना? राइट, ओह माय गॉड। भाई साहब, सो ही वांटेड राइज अप, पता है जिसको उसने बोला मेरी मम्मी पापा ना, पता है मेरे मम्मी पापा ने मेरी बिल्ली को भाई साहब बोलते हैं आजकल। मेरी बिल्ली का नाम चेंज करके भाई साहब रख दिया है। सो ऐसा बहुत होता है कि लोग बहुत ही मतलब गाने का पूरा एकदम ऐसी तैसी करके उसके बीच में से एक वर्ड उठा के बोलेंगे कि ये गाना चला दो, यू नो, उसका नाम बिगाड़ देंगे। और आके क्या है, फिर कई लोग आते हैं जो कान में आके पूरा गाना गाना चालू कर देते हैं, उनको गाना नहीं पता होता है ना, लेकिन हाँ। उसकी ट्यून आपको सुनाने लग जाते हैं, टिंग 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 और टिंग कभी टिंग कभी टिंग। लोग भी चढ़ते हैं ऊपर, ऐसा नहीं कि एक हो दो हो, ऐसे 10-10 लोग एक साथ आ जाएंगे, डीजे हाँ, को घेर हाँ। लेंगे, आपका काम नहीं करने देंगे। सो यू हैव टू बी पोलाइट एंड स्टिल मैनेज योर म्यूजिक एंड मैनेज द ऑडियंस। क्या बाउंसर वगैरह And- लगते हो ना तुम 2-3 साथ में? हाँ, एंड इसमें एक चीज और फनी होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना गाने का नाम पता होता है, ना उनको हाँ। गाने की लिरिक्स पता होती हैं, लेकिन उनको गाने का वीडियो याद होता है पूरा। So they'll come up to you and they'll do the dance step of the track. And then it's your job to figure out. So people चलो will come मेरा and डांस suggest, कर बताओ। people will say, ये वाला बजाओ। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हो जाओगे पागल कि यार ये कौन सा स्टेप आ गया, ये कौन सा गाना आ गया। अब गंगनम लकीली स्टाइल। अब लकीली ये वीडियो देखा है आपने कि हाँ दिस इज गैंगनम स्टाइल, तो ठीक है अपन चला देंगे। लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जो इसको आपने सिर्फ ऑडियो सुना, आपने वीडियो नहीं देखा उसका, लेकिन पीपल विल कम एंड से यार ये वाला, एंड यू डोंट नो दिस, यू आर अ शिट डीजे, यू आर अ बैड डीजे बिकॉज़ यू डोंट नो दिस। यार वीडियो थोड़ी ना देखने के लिए बैठा हूं मैं ऑडियो चला रहा हूं। तो बहुत सारे फनी इंस्टेंसेस, मतलब इस पे तो पूरा एक सेशन हो जाएगा कि वियर्ड रिक्वेस्ट फेस बाय अ डीजे, फनी रिक्वेस्ट एंड फनी इंस्टेंसेस, ये तो बहुत हैं। तो मतलब 15 साल में इतने हो गए हैं कि मैं लोगों को बता के पूरी रात खत्म कर सकता हूँ हंसा हंसा के। रविश, तुमने फैशन वीक्स में भी बजाया है, पार्टीज में तो ऑब्वियसली यू प्ले फॉर बिग इवेंट्स, और सब जगह ऑडियंस अलग होती है, रिक्वायरमेंट अलग होती है। सो हाउ डिफरेंट Correct. आर ऑल दीज प्लेसेस टू प्ले? फैशन डीजेइंग की क्या रिक्वायरमेंट है, इवेंट्स में क्या जी, रिक्वायरमेंट है, और club में हाँ क्या मतलब हर टाइप का इवेंट दूसरे से बिल्कुल अलग है। फैशन डीजिंग, जब आप फैशन शो में म्यूजिक प्ले करते हो तो आप वो सारे गाने नहीं बजाते जो आप एक क्लब में बजाते हो, है ना। क्लब में आई कैन प्ले गैंगनम स्टाइल, अभी जैसे नाम लिया, आई कैन प्ले ऑल द लेटेस्ट बॉलीवुड ट्रैक्स। लेकिन फैशन शोज में उस टाइप का म्यूजिक नहीं चलता। फैशन शोज में फ्यूजन म्यूजिक चलेगा, यू नो, इंडो वेस्टर्न म्यूजिक चलेगा,
उस टाइप का म्यूजिक चलेगा। तो आपको उस टाइप की म्यूजिक की नॉलेज होनी जरूरी है, आपके पास उस टाइप का म्यूजिक का कलेक्शन होना जरूरी है। एंड वही इट ऑल्सो कम्स विद एक्सपीरियंस कि आपने डिजाइनर के गारमेंट्स देखे और गारमेंट्स देख के आपने उसको म्यूजिक सजेस्ट कर दिया कि यार आपके गारमेंट के अकॉर्डिंग दिस म्यूजिक इज Yeah. गुड, है ना। तो वो भी एक्सपीरियंस के साथ आता है। और फैशन शो में मतलब लाइव मिक्सिंग भी होती है, जो कुछ यस होती है ना। कोरियोग्राफर्स पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हाँ हाँ, कुछ कोरियोग्राफर्स होते हैं ना कि जैसे ये मॉडल एग्जिट करेगी तो द म्यूजिक शुड चेंज बिकॉज दिस इज अ न्यू सेगमेंट, यहाँ से नेक्स्ट तरह के कपड़े आएंगे। आई एम श्योर बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि एक बस जैसे ही सारे ब्लैक्स चले गए, नाउ द व्हाइट्स विल कम। सो ब्लैक्स जाने के बाद आपको म्यूजिक चेंज करना है, तो यू हैव टू बी वेरी So let's अटेंटिव be और उस clear टाइम पे for आपको people. Blacks and whites means जब it's we're talking about कपड़े garments. या We're not talking about the black people. पता चले यहीं पे रिवोल्ट शुरू हो जाए. We're talking about clothes. So designers have different collection. Like if there is one collection of black outfits, तो वो खत्म हो गया, उसके बाद दूसरे कलर का कलेक्शन आया, दूसरे प्रिंट का या स्टाइल का आया, उसके हाँ उस हिसाब से रविश इज उसके टॉकिंग. अकॉर्डिंग म्यूजिक म्यूजिक चेंज हो जाएगा। देन री एंट्री में नया म्यूजिक, देन यू नो आपका डिजाइनर की एंट्री पे नया म्यूजिक। तो वो सब कुछ लाइव मिक्सिंग होती है। एंड आई ऑल्सो प्रेफर कि कोरियोग्राफर अगर मेरे से लाइव मिक्सिंग कराए तो आई एम वेरी हैप्पी। कोई कुछ कोरियोग्राफर्स होते हैं जिनको नॉन स्टॉप चाहिए होता है, तो नॉन स्टॉप बजा देते हैं। वो कोरियोग्राफर टू कोरियोग्राफर डिपेंड करता है। ये फैशन डीजेइंग कोई कहाँ से सीख सकता है? बिकॉज आई एम श्योर व्हेन यू आल्सो स्टार्टेड इनटू फैशन डीजेइंग यू डिड नॉट नो ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज जो फैशन डिजाइनर्स करेक्ट। या कोरियोग्राफर्स यूज करते हैं, अलग होती हैं। तो वो कैसे सीख सकता है एक नया डीजे? सी फैशन डीजेइंग के लिए अलग से तो कुछ कोर्स है नहीं। यू हैव टू फर्स्ट नो द डीजेइंग। पहली बात आपको डीजेइंग आनी चाहिए, और जब आपको डीजेइंग आ जाती है और अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो आपके साथ अपने साथ आपको फैशन शोज में ले जा सकता है और वहाँ पे आपको ग्रूम कर सकता है, ट्रेनिंग दे सकता है, तो वही एक तरीका आई बिलीव इज देयर टू लर्न फैशन डीजिंग। क्योंकि इसके अलग से कोई कोर्स नहीं है। आप मतलब वैसे इनफैक्ट किसी भी फील्ड के लिए कोई अलग से ऐसे नहीं है कि क्लब डीजेइंग के लिए अलग कोर्स है, वेडिंग डीजेस के लिए अलग है। इट्स वन कोर्स दैट इज डीजेइंग। उसके बाद आपको उसमें किस किस फील्ड में क्या क्या काम करना है वो आपको काम करके ही समझ में आएगा, है ना। आईपीएल भी हमने फर्स्ट टाइम किया था तो आई डिड नॉट नो कि क्या क्या करना है। वो तो वहां जाके पता चला कि यार ये इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं आपको, है ना। वो 4 पन्नों के तो सिर्फ रूल्स ही रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। रन्स पे भी आपको ध्यान देना पड़ता है ना। जैसे छक्का लगा तो यू हैव टू प्ले दैट छक्का वाला सॉन्ग, चौका लगा उसका आउट वाला अलग सॉन्ग। हाँ हाँ हाँ, और मतलब मैं वो तो हर चीज के स्टेडियम लिए। गई हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता स्टेडियम जाके कब छक्के लग रहे कब चौके लग रहे, बस लोग चिल्लाते हाँ, रहते हैं पूरे टाइम. सो इसीलिए ही आईपीएल करना इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, वेरी टफ जॉब। 3 घंटे के मैच में आप अपनी आईज झपका नहीं सकते, यू नो, वी हैव टू बी वेरी अटेंटिव। देयर इज नो रूम फॉर एरर, जीरो रूम फॉर एरर, क्योंकि एवरीथिंग इज लाइव एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। तो आप मिस्टेक Right. कर ही नहीं सकते। अगर आप में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप इतने सारे क्राउड के सामने और लाइव गेम में परफॉर्म नहीं कर सकते, तो आपको करना ही नहीं चाहिए वो चीज़। आप मत ही घुसो उसमें, क्योंकि फिर आप पूरा एक स्पोर्टिंग इवेंट खराब कर दोगे, है ना। चौके पे Right. अगर आपने चौके का म्यूजिक नहीं बजाया तो वो भाई मतलब इट इज अ वेरी बिग थिंग। मतलब वो टीम की प्रेस्टीज पे बात आ जाती है कि हमारी टीम ने चौका मारा और आपके डीजे ने म्यूजिक क्यों नहीं बजाया, तो बहुत प्रेस्टीज इश्यूज हो जाता है। तो यू नो देयर इज एंथम फॉर 4, 6 विकेट, एम्पायर्स की एंट्री, यू नो स्पॉन्सर्स का म्यूजिक, योर रेगुलर म्यूजिक, योर नो बॉल का म्यूजिक, योर ट्रम्पेट, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब 20-25 चीजें तो ऐसी होती हैं जो आपके फिंगर टिप्स पे होनी ही चाहिए हमेशा। एंड उसके अलावा रेगुलर म्यूजिक जो आपको क्राउड को एंटरटेन करने के लिए बजाना है, उसमें भी देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू लाइसेंसिंग ट्रैक्स की, क्योंकि कौन सा म्यूजिक आप बजा सकते हो कौन सा नहीं बजा सकते, बहुत सारा होमवर्क करना पड़ता है। एंड इट्स अ वेरी टफ जॉब, लेकिन मजा बहुत आता है कि वो जब 30,000 40,000 पीपल आपके म्यूजिक पे रिएक्ट करते हैं ना, तो उसका मजा ही अलग है। Do you ever feel, Ravish, that DJing is an underappreciated job? कि आप Yes. मेहनत बहुत करते हो, काम बहुत करते हो, इतना मतलब पूरे एनवायरनमेंट को समा बांधने का काम एक डीजे करता है, म्यूजिक करता है, और उसको इतना अप्रिसिएशन शायद नहीं दे पाते लोग, नहीं जानते इम्पोर्टेंस. I always have a complaint with the society, Indian society, that they don't appreciate DJ. ठीक है, डीजेज आज भी सभी लोगों के लिए हैं बैंड वाले, है ना। नो ऑफेंस टू बैंड वालास, दे आर ऑल्सो आर्टिस्ट एंड परफॉर्मर्स, बट हम डीजेस को भी बैंड वाला, ऑर्केस्ट्रा वाला, यू नो, ये सब बोला जाता है, विच इज अ टोटली डिफरेंट जॉब। हमारा जॉब बहुत डिफरेंट है ना। वी परफॉर्म इन इवेंट्स, वी परफॉर्म इन क्लब्स,
लेकिन हमें भी वो बोला जाता है बैंड वाला, पता नहीं क्या म्यूजिक करता रहता है, क्या बजाता रहता है ना, गलत इंडस्ट्री है, लोग नशे करते हैं वहां पे, ऐसे बहुत सारी चीजें हमारी उसमें बोला जाता है। सेकेंडली, इंडिया में डीजेइंग को कभी भी एज अ प्रोफेशन ट्रीट नहीं किया गया है ना। एंड आई हैव फेस दिस थिंग पर्सनली, कि अगर मैं कहीं किसी को जाके ये बोलूंगा कि आई एम अ डीजे, तो दे विल से ओके वो तो आपका पैशन होगा, पार्ट टाइम हॉबी होगी, आप काम क्या करते हो? तो बोला नहीं मैं डीजे हूँ। बोला नहीं नहीं, वो तो हॉबी होगी ना, काम क्या करते हो, आपका जॉब क्या है, नौकरी कहाँ करते हो, है ना। It's the same ये with तो modeling also, Ravish. हाँ, सेम है, तो हमारे साथ भी यही, लोग को सी लगता है कि मॉडलिंग, हॉबी सी है। मॉडलिंग तो क्या है कि फिर भी एक बार वर्ड ऐसा है मॉडल बोलना कि लोग फिर भी एक बार समझ जाते हैं कि ओके मॉडल, ओके फैशन इंडस्ट्री, लेकिन डीजेइंग नहीं समझते। एंड आई फेस कि यार मैं मेरा जब पहला बैंक अकाउंट खुलाने गया था और उसमें बोलते हैं कि वेयर डू यू वर्क, आई रोट डीजे, बोला ये क्या होता है? मतलब मेरे को बैंक्स ने अकाउंट खोलने से मना किया है, मेरे को क्रेडिट कार्ड देने से मना किया है बैंक्स ने। स्टार्टिंग में सब ने ये किया कि यार नहीं नहीं आप तो सेल्फ एम्प्लॉयड, ये डीजे क्या होता है, नहीं ये तो कोई जॉब नहीं होती, आप तो कहीं सैलरीड एम्प्लॉयड हो तो बताओ। तो बहुत चीजें आती है और आज भी फेस करते हैं हम, आज भी मतलब सिर्फ क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए नहीं, लोन लेने के लिए, किसी भी चीज के लिए होता है। जब आप ये लिख देते हो ना कि डीजे है, तो लोग ये पूछते हैं कि प्रोफेशन क्या है आपका, काम क्या है, ये तो हॉबी होगी आपकी। तो अपनी अपनी सोसाइटी नहीं समझती। इट इज वेरी Yeah. अंडर अप्रिशिएटेड जॉब, यू नो, वेरी अंडर रेटेड जॉब। और मैं बस यही चाहता हूँ, और मैंने बहुत इंटरव्यूज में बोला भी है कि मैं ये चाहता हूँ कि एक दिन इंडिया में भी इस फील्ड को एज अ फुल टाइम प्रोफेशन रिकॉग्निशन मिल जाए कि हाँ भाई आप क्या हो, आप डीजे हो, आप क्या हो, आप म्यूजिक प्रोड्यूसर हो, इट इज अ फुल टाइम जॉब, और उसका अप्रिसिएशन मिल जाए। मेरे को आज तक 15 साल हो गए डीजेइंग के, तो भी मेरे से लोग पूछते हैं कि ठीक है डीजेइंग तो आप करते हो, साथ में और क्या करते हो, क्योंकि उसके भरोसे Yeah. तो आपकी जिंदगी चलती नहीं होगी ना, साथ में और क्या करते हो, लोग ये पूछते हैं। तो मैं यही But I चाहूंगा कि think यार एक people दिन, don't know DJs actually earn quite a lot of money if they reach a certain level. आप एक जगह भी यस यस बजाने जाओगे and if you're decently popular, you can easily make 50-60,000 for one particular set, right? यस It's यस the basic. फिर आप जितने जितने बड़े होते जाते हो उतना आपका इनकम सी आई थिंक बढ़ता जाता है। मैं वही कह रहा हूँ कि मनी वाइज अगर आपका नाम है तो देर इज नो लिमिट टू अर्न। आप उतना कमा लोगे एक रात में जितना शायद कोई बंदा जॉब करके पूरे महीने में कमाता होगा, है ना, उतना बिल्कुल। आप एक रात में कमा लेते हो। तो मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज विद अप्रिसिएशन फ्रॉम द सोसाइटी। कि कोई Yeah. बंदा अगर ये बोल देता है आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, आई एम लॉयर, ये वो, तो लोग फटाक से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं एंड लोगों की नजर में उसकी इज्जत बढ़ जाती है कि ओ माय गॉड डॉक्टर साहब, ओ माय गॉड लॉयर साहब, एडवोकेट साहब। लेकिन हमारे क्या होता है कि हम बोलते हैं तो हमें हमें बड़ी गंदी नजरों से देखा जाता है कि यार डीजे है ना, वो वाली फीलिंग आती है कि You यार। don't तो understand. Is it the सीरियसली difference मतलब between tier 1 and tier 2 cities? Tier 1 में I think DJs are appreciated. Welcome. लोग see जाते हैं उनके नाम bigger पे. bigger cities, more educated people, they obviously know about DJ, है ना। आई डोंट थिंक ये टीयर 1 टीयर 2 से नहीं होता, सो होता है, इट्स जस्ट अबाउट योर माइंडसेट, आप कितना जानते हो इस फील्ड के बारे में। अगर कोई इसके बारे में जानता है तो दे विल अप्रिशिएट, नहीं जानता है तो वो अब फिर वो नहीं समझते, ये उनके लिए प्रोफेशन ही एकदम न्यू है कि यार ये पता नहीं क्या है, क्या कर रहा Right. है ना। तो बस मैं तो ये चाहूँ कि यार एक ना एक दिन ऐसा हो कि सोसाइटी अप्रिशिएट करे इस फील्ड को। जैसे अभी ये कमेंट्स आ रहे हैं डीजे वाले बाबू, नाउ आई हेट दैट Yeah. वर्ड, डीजे वाले बाबू। वो क्या होता है डीजे वाले बाबू, व्हाट इज डीजे वाले बाबू? मैं तो हम तो गाने वाली किसी थी यार रमेश तेरे लिए, मैं हम गाना तो गाने हम वाली तो थी पीछे में, बाबू मेरा गाना yeah, बजा दो. see you singing for me is okay because you know me from years, for more than a decade, ठीक है, तो that is fine, but random people coming up to me and saying oh डीजे वाले बाबू आ गए, तो I hate that। क्यों मैं किसी का Yeah. बाबू वाबू नहीं हूं ना यार, बात समझो। मैं एक मैं प्रोफेशनल किसी बंदा को हूँ। बाबू नहीं बना यार, हाँ so cute. यार मैं see आई एम अ प्रोफेशनल सो आई वांट टू बी ट्रीटेड एज अ प्रोफेशनल। अंडरस्टैंड? जैसे दूसरे दूसरे प्रोफेशंस को रिकॉग्निशन मिलता है ना, मैं भी यही चाहता हूँ कि डीजेइंग को भी रिकॉग्निशन मिले। मेरा बस यही है कि यार मिलेगा मैं डीजे बिल्कुल बोलूँ तो रमेश. लोग समझे कि हाँ यार ओके ही इज अ डीजे, है ना। Ravish, over the years, you've created a name for yourself, and I'm sure हम्म, people know you. You go to Delhi, Bombay, Bangalore, the entire fashion industry knows who's Ravish. You've worked with all of हम्म, them. So many big artists, DJs, they all know about you. You've played in the biggest of the clubs in India and abroad. And I'm हम्म। so happy that today you could take out this time for this interview.
और मैं तो Thank you so बोलूंगी much. तुम्हें डीजे वाले बाबू, नो मैटर हाउ बैड यू फील, आई वांट टू से डीजे You वाले can बाबू only. you can say you are very close friend of mine, so you can say, but वही है ना, see random people आके बोलना, that is very रैंडम weird, से नहीं you know. था। रैंडम लोग आके और फिर आपको डीजे वाले बाबू बोलना चलेंगे यार, है ना, या डीजे वाले बोल देते हैं, है ना, हाँ या डीजे ऑपरेटर बोल देते हैं आपको, है ना। हाँ और एक और जो बहुत कॉमनली लोग बोलते हैं कि डीजे बजा, तो आई एम अ डीजे, हाउ कैन आई बजा अ डीजे, है ना, आपको ये बोलना चाहिए म्यूजिक बजा, लेकिन लोग ये बोल देते हैं बिल्कुल। डीजे डीजे बजा, डीजे बजा, है। और आप न्यूज़पेपर में भी देखो, मेरे को न्यूज़पेपर वालों पे बहुत गुस्सा आता है इस चीज के लिए, कहीं भी बोलेंगे रात को 10 बजे तक ही बज सकता है डीजे, है ना, डीजे बजाने की परमिशन रात 10 बजे तक ही, अरे डीजे नहीं बजता, आप बोलो ना म्यूजिक बजाने की म्यूजिक। परमिशन है ना, क्योंकि हाँ उनके लिए डीजे इक्वल्स टू साउंड, है ना, डीजे की परमिशन नहीं है, यहाँ डीजे की परमिशन नहीं है, तो वो टर्मिनोलॉजी भी बहुत गलत यूज होती है। मैं वही बनाना चाह रहा हूँ कि इस प्रोफेशन को रिकॉग्निशन नहीं मिलता, है राइट। ना, तो रिकॉग्निशन मिलना चालू हो जाएगी, लोग समझेंगे, तो बड़ा मजा आने लग जाएगा काम करने में, और सारे डीजेस की लाइफ सुधर जाएगी। इंशाल्लाह वेरी सून दिस इज गोइंग टू हैपन एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, जैसे हम लोग ये लाइव सेशन कर रहे हैं और ऐसे लाइव सेशन होते रहेंगे, लोगों को समझ आएगा व्हाट द करियर इज। एंड हम्म स्पेशली आई वांटेड टू डू दिस क्योंकि मुझे लोग रिक्वेस्ट भेज रहे थे कि डीजे के हम्म बारे में हमें सीखना है। आई डोंट नो फॉर हम्म सम रीजन लोग सोचते हैं कि मैं भी डीजे हूँ, बट नो आई एम नॉट, आई डोंट नो द डी ऑफ डीजेइंग। आई एम फ्रेंड्स See विद every डीजे सो आई see अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट। everybody is a DJ, everybody is a DJ, and God is a DJ. तो everybody can be a या DJ, इसमें कोई वो नहीं है। गॉड इज प्लेइंग इट सिम्फनी, हम सबको नचा या रहा है गॉड। हम कोरोना सब वायरस नाच ही रहे भेज दिया हैं। हमारे हम्म, लिए। हम सब नाच ही रहे हैं। So natural. Chalo, Ramesh, it was a pleasure having you, and thank you so much for such Same a here. wonderful conversation. Thank you so much आकृति। Take care. I'll see you in the evening. हाँ, इवनिंग योर बर्थडे पार्टी। Okay, yay! मैं तेरे को दूसरी चलो बर्थडे पार्टी डन में है। लेकर जाऊंगी। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मेरे को Bye. तेरी बर्थडे पार्टी चाहिए, मेरे को किसी और की नहीं चाहिए। मुझे तेरी बर्थडे ठीक है, पार्टी मेरी चाहिए। बर्थडे। Okay, मेरी ठीक है, बर्थडे डन है पार्टी। डन है, चलो ओके, Okay, थैंक यू फॉर Ramesh. हैविंग मी, थैंक यू See फॉर you. हैविंग मी। मैं आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस का सही सही जवाब दिया होगा, एंड थैंक यू एवरीबॉडी जो लोग भी लाइव सेशन अटेंड करें, थैंक यू सो मच गाइस, एंड कीप फॉलोइंग, कीप लिसनिंग टू माय म्यूजिक, थैंक यू सो मच। Yes, everybody go follow Ramesh, DJ Ramesh. Ramesh. Ramesh चलो is बाय। ravishing. हाँ, थैंक यू सो मच। Okay, Ramesh. See you. Bye bye. थैंक यू, बाय बाय। Thank you so much, people, for joining in and watching this wonderful live session. I had a great time chatting up with DJ Ravish. I'm sure आपको भी ये helpful लगा होगा, educational लगा होगा। जो मुझे questions आप लोगों ने DM किए थे, मैंने वो सभी पूछे, and I hope that we could solve your queries. Next week again, I will be back with some interesting live sessions. And अगर आपका live session miss हो गया है, then don't worry. 9 o'clock, I'm going to upload this same session on my Instagram. ये same session आप YouTube पे भी देख सकते हैं. And you can also listen to us, the podcast, on 7 different platforms, including Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Radio Public, Overcast, Breaker, and couple of other platforms. मैं सब कुछ डाल दूंगी लिंक में. Okay, so guys, see you. And if you like this session, मुझे follow भी कर लो, अच्छा लगेगा. And press the thumbs up button, guys. Bye. डीजे वाले बाबू मेरा खाना बचा दो, खाना बचा दो, खाना. डीजे वाले, bye bye.